everyone, welcome to weekly current affairs session. So if you are preparing for the CUET PG and targeting the different paper pattern like COQP 11 and 12 and want to prepare for the current affairs for your exam as well as for the interview, so this weekly current affairs session will be very helpful for you because here on a weekly basis we will see the most important and expected question for your exam. So just continue, follow this series and improve your current affairs as well as static understanding. As well as here is one more important information, you guys. If you want to start your preparation under the guidance of the expert faculty, so you can start your preparation with Maneuver, and these all are the Maneuver center in Mumbai and Pune. So numbers are mentioned, so you can call in case of any doubt, any query. And this is the number if you're out of Mumbai and Maharashtra. So for online program, you can call 8828581455. Okay. Some other programs are also there. So you can visit our website and you just have to click in a browser www.maneuveredu.com, and link is mentioned in a description. So you can also click on it and see here. You just have to visit like test entrance and COQP 11 and COQP 12. So as per your preparation, you can explore the program. So here is a live self-study sectional mock test. So you just have to click like self-study, and if you want to see the what is the course content, so just click here view details. Okay, so you can explore the course content here, and as per your need, if you want so mock test, if you want ebook, if you want self-study, live classroom, whatever, so you can explore program here on Maneuver website. Okay, now let's start question parts and see the first question here. So first question is here: who become the first Indian women to reach semi-finals of FIDE International Federation of Chess Women's Chess World Cup? So what is the name of this chess grandmasters? So Harika Dronavalli, Divya Deshmukh, Koneru Hampi, Vaisali Ramesh Babu. As well as here is one important information also related to this sport personality. So first try to see the correct answer and who just understand who is the first Indian women. So correct answer is Koneru Hampi, and Koneru Hampi was the first Indian women as well as youngest women to be grandmaster in 2002. Okay, so this is also very important information, guys, just remember. And here you can see some additional information. Koneru Hampi made the history by becoming the first Indian woman to reach the semi-finals of the FIDE Women's Chess World Cup, and then tournament being held in Batumi, Georgia in 2025. And she defeated the Song Xian in China in quarterfinals. And this is the first time an Indian has reached in the final for this event. Okay, so these all are the additional information, so just try to remember and revise, and all questions are very important and expected for your exam. So I can say all questions are golden question for your exam. Okay, so काफी carefully and सारे information के साथ आप update करोगे. Under which article of Indian Constitution did Vice President Jagdeep Dhankar resign? So मैंने बोला था आपको हर question के साथ static and current affairs में दोनों discuss करूंगा. So because रिजिग्नेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, तो उससे रिलेट करके जो क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है लाइक स्टैटिक जीके से, जो पॉलिटी से बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है. इट मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिकल. यू नो, तो एक क्वेश्चन आपको पॉलिटी से आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बट इतने सारे आर्टिकल है, सारे स्टडी नहीं करने होते. रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, जो चीजें करंट अफेयर्स में होती हैं उन्हीं से रिलेट करके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछता है. सो उस चीज पे अगर आप फोकस करोगे ना, तो अगर ये कंटिन्यू सीरीज आप फॉलो कर रहे हो, तो ये चीज आपकी काफी अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएगी. आपको अननेसेसरी सारे स्टैटिक जीके न पढ़ के टू द पॉइंट स्टडी करोगे, मतलब जो एग्जाम के लिए हाईली एक्सपेक्टेड है वो आपका अपडेट रहेगा, राइट. सो हियर as per this question it's asking about the article. So कौन सा आर्टिकल है? So correct answer यहाँ पे रिमेंबर रखोगे आर्टिकल 67A. as well as one more important information, resignation submitted by the president submitted to president द्रौपदी मुर्मू. So याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना रिजिग्नेशन सबमिट करता है? वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन देना है तो प्रेसिडेंट को, और इन केस मान लो अगर से प्रेसिडेंट को ही देना हो तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देंगे. एंड इन केस समझो कि अगर से वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देना है
और अगर से प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर किसको देंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। इन केस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी पोस्ट वेकेंट है, उस टाइम पे कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो फिर मोस्ट सीनियर जज को देते हैं, राइट। तो ये सब जो पॉलिटिकल जो पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आप करंट अफेयर से कनेक्ट करके जब चीजों को अपडेट करोगे, सो काफी बेटर वे में आपका इंप्रूव हो जाता है, फिर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटता, चाहे वो स्टैटिक जीके से हो या फिर करंट अफेयर से हो। आफ्टर दैट यहां पे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको रिमेंबर रखना है। ही रिजाइन चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ही ऑल्सो स्टेप डाउन एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो यहां पे जो ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, इसका मीनिंग ये है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। राज्यसभा का जो चेयरमैन, इट मींस बाय डिफॉल्ट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इट मींस बाय डिफॉल्ट जो भी प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, राइट। जो राज्यसभा अपना पार्लियामेंट चलती है तो उसको हेड करता है, तो यहां से वो वहां से भी स्टेप डाउन हो गए, करेक्ट। सो ये सब सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, हु इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सो आपको ऑप्शन दे दिया गया प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। सो अगर से अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली मार्क कर लोगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सब सारे पॉलिटी के काफी फेवरेट क्वेश्चन है। सो अब ये क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैंने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। तो ये 15 क्वेश्चन के साथ आप सिर्फ 15 क्वेश्चन अपडेट नहीं करोगे, फॉर श्योर आप मोर देन 50 क्वेश्चन अपडेट हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन आपके अपडेट हो जाएंगे, अगर से आप वीडियो को कंटिन्यू एंड कंसिस्टेंट वे में फॉलो कर रहे हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एनसीएक्स इन भारत एनसीएक्स 2025? सो देखो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस से क्वेश्चन है। सो नेशनल कमीशन फॉर कमीशन एक्सचेंज, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, नेटवर्क साइबर एक्सचेंज एंड नेटवर्क कमांड एग्जीक्यूशन। सो सारे एरिया से मैंने ट्राई किया क्वेश्चंस को कवर करने का। इट मींस नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस, साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस को पूरे वीक से जो गोल्डन 15 क्वेश्चन है वो आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। भारत NX 2025 नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज वाज ऑफिशियली इनैगुरेटेड। एंड यहाँ पे जो एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको रिमेंबर रखना है कि इनैगुरेटेड बाय होम, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टीवी रविचंद्रन। सो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, तो ट्राई करना रिमेंबर करने का। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द अपकमिंग बुक काउंटडाउन टू रिचेस। देखो बुक्स एंड राइटर से काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आता है, और ये क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड हो सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। सो अपकमिंग बुक है, अभी नवंबर में लॉन्च होगी। सो यहाँ पे रॉबिन शर्मा, जय सेट्टी, रॉन्ड्रा बर्न एंड पाउल कोएलो. So these all are the name of the persons as per the questions you can guess which one is the correct answer. It means author of the upcoming this book. So books and author point of view, one question you will see for sure, you will see in your exam. It may be from the current affairs or static or connected dynamic static GK. So just try to remember because he is a very well known author, writer. So Ron Byrne, best-selling author, The Secret, making the comeback with the new book title Countdown to Reaches 21 Days of Wealth Attracting Habits. So this book will be launched in November 25, 2025. So it is the first in a plan, a new series by the Byron. The book will be published by the HarperCollins and Pran Earth that the financial struggle STEAM form of the mental barriers and wealth can be achieved by the training the brain. So basically these all the things will be the feature of the books, but as per current affairs point of view, as per our exam point of view, just remember the name of the book and writer. Okay, next, what is the rank of India July 2025 Henley Passport Index? Very important index. So as per this index you can see the what you can say passport, how our passport is a powerful. It means in how many country we can visit without, we can travel without visa. This index show this type of the data. Okay, so basically what is the rank of Indian passport? So 85th, 877, 72, 93. So कितने कंट्री में हम विदाउट वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, अलाउ कौन कौन सी कंट्री करती है, इस बेसिस पे ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को के रैंक को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है. सो बेसिकली सी रैंक ऑफ इंडिया जो 77. इट मींस अगर आप इंडिया का रैंक देखो तो हाईएस्ट इंप्रूवमेंट अभी जो देखने को मिला है एज पर द लास्ट अगर मैं
मैं खुद भी इस रैंक को लास्ट कम से कम 5-6 ईयर से कंटिन्यू देख रहा हूँ, तो इंडिया हमेशा 80 के एबव ही रहा है, 81, 82, 70, 87 ऐसे ही रहा है। बट इस साल 77 देखने को मिला सिंस जनवरी 2025। पूरे ईयर में 2 बार ये इंडेक्स रिलीज होता है। एंड अगर से यहाँ पे देखोगे हाईएस्ट कंट्री है तो सिंगापुर। अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 193 ऐसे कंट्रीज, इट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्लेसेस, हर जगह जा सकते हो। अगर से आपके पास जापान एंड साउथ कोरिया का है जो कि सेकंड प्लेस पे आता है, 190 डेस्टिनेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जा सकते हो। अगर से आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो फिर आप नियर बाई आई थिंक 59 डेस्टिनेशंस विदाउट वीजा आप जा सकते हो। तो ये बेसिकली शो करता है कि आपके कंट्री का पावर, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का जो पासपोर्ट है कितना पावरफुल है, ठीक है। और अगर से पास आपके पास समझो कि अफगानिस्तान का है तो लास्ट रैंक विद द वीजा फ्री एक्सेस इन जस्ट 25 डेस्टिनेशन मेकिंग 168 कंट्रीज गैप विद द सिंगापुर, ठीक है। तो 25 डेस्टिनेशन पे जा सकते हो, वही कुछ नियर बाई कंट्रीज होंगे जहां पे जा सकते हैं अफगानिस्तान का अगर पासपोर्ट है तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। Dash adjust the world best consumer bank 2025 by Global Finance Magazine। So वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंज्यूमर बैंक का जो अवार्ड मिला है यहाँ पे किस बैंक को मिला है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सिस बैंक। सो दिस इज द वेरी ग्रेट अचीवमेंट बिकॉज एक इंडियन बैंक को ये बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड मिल रहा है। तो एज आई सेड कि मैं आपको बैंक एंड फाइनेंस, साइंस एंड टेक सारे वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन से अवेयर कराऊंगा को ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ करेक्ट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025। बाय द वे जो भी आपका एक्सपीरियंस हो एसबीआई का आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आई वांट टू सी कितना बेटर, कितना एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग आपका एक्सपीरियंस रहा है अगर से आपका अकाउंट एसबीआई में है। बाय द वे यहाँ पे एसबीआई जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड मिला है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के थ्रू। तो यहाँ पे जो कैटेगरी आप देख सकते हो, रिकॉग्निशन हाईलाइट द एसबीआई exceptional customer service, strong digital transformation effort. The award ceremony will take place in Washington DC. The award will be received by the CS Setty chairman of SBI. So this line is also important. जो मैंने highlight किया है वो और भी ज़्यादा important है इस description वाले part से, तो उसको थोड़ा focus से आप revise करने का try करना। Who has been appointed as the new chairman of IRDAI? So July 2025. So important institution for the regulation of the insurance. So TV Sobnath, Devis Panda, Ajay Seth and Rajiv Kumar. So what is the name of the person appointed basically related to important appointment section? This question is a very important, so just try to remember. Name of the person is Ajay Seth. Ajay Seth has been appointed as the chairman of IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, for 3 years term. Okay, the post has been vacant since March 2025 after Devis Pandya resigned. Okay, so important appointment point of view, just try to remember. Next question is what here, who is the now the second longest serving prime minister of India in consecutive terms? very important यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, अबाउट द इंदिरा गांधी, अबाउट द मोदी जी। तो इन सब से तीनों से कंपेयर करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इट मे बी पॉसिबल कि एग्जाम में फ्रेम हो जाए। ओके, सो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी एंड नरेंद्र मोदी। सो करेक्ट आंसर रिमेंबर रखो नरेंद्र मोदी। On July 2025, PM Narendra Modi became the second longest serving PM Prime Minister of India and consecutive terms, completing the 4078 days and surpassing the Indira Gandhi's record 4077 days. तो यहाँ पे इंदिरा गांधी को इन्होंने सरपास करके एक सेकेंड नंबर के मोस्ट सर्विंग पीएम का जो प्लेस है इन्होंने अचीव कर लिया है। और अगर फर्स्ट पोजीशन पे देखें तो अभी भी जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम इन कंसेक्यूटिव टर्म्स। 16 ईयर्स का जो इनका 16 ईयर 286 डेज 15 अगस्त से लेकर 1947 से मई 27 1964 का पीरियड है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात, जो गुजरात में वो सीएम का उनका टेन्योर हो रहा है 2022 से लेके 7 से लेके 12 एंड पीएम का अगस्त देखोगे तो 14 से 1990 से 24 एंड 24 से अभी भी आगे चल रहा है। सो ही हैज कंप्लीटेड नियरली 24 ईयर ऑफ अहेड ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट प्लस सेंटर। तो ये बेसिकली पूरा डिटेल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय द वे एज पर द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू रखो, सेकंड नंबर के पीएम बन गए नरेंद्र मोदी, जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के रैंक में आते हैं। सो नाउ इंदिरा गांधी बिकम द थर्ड वन।
ओके, फर्स्ट वन पे अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट वन, which G7 country has announced it will recognize Palestine in September 25 at UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो मीटिंग होगी, जो मीटिंग होती है एवरी ईयर सितंबर में, उसमें इस कंट्री ने अनाउंस किया है, क्योंकि G7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशन ग्रुप, जितने भी डेवलप कंट्री हैं जिसमें सारे यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूएस, यूके सब आते हैं, तो इन लोगों ने रिकॉग्नाइज इस सारे G7 ग्रुप से इस कंट्री ने अनाउंस किया है कि दे विल रिकॉग्नाइज द पैलेस्टाइन एज अ कंट्री। तो अभी तक जो चल रहा है टू नेशन थियरी, जो इजराइल पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, गाजा का सिचुएशन आप लोग न्यूज में देखते रहते हो, सो ओवरऑल इन सबसे रिलेट करके भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल जो ईरान ने अटैक किया इजराइल पे, तो वो कौन सा ऑपरेशन था, फिर इजराइल ने जो अटैक किया था द राइजिंग लॉयन ईरान के ऊपर, उस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो ऐसे जो क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट से, करंट वॉर से ऐसे चीजें आती हैं, तो उन पे फोकस किया करो, पॉसिबल है कि वहां से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाता है, बिकॉज एग्जामिनर का मेन एक्सपेक्टेशन होता है कि एज अ स्टूडेंट हाउ यू आर अवेयर, कितना आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो, तो वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स होता है। तो ऐसे जो हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन है, हाईलाइटेड न्यूज है, जस्ट ट्राई टू अपडेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस विल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इन सितंबर 2025। तो अब पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री अगर से वो एक्सेप्ट करेगा, तो फिर मतलब जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं वो सब सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे फ्रांस ने ये अनाउंस किया, और फ्रांस एक पावरफुल कंट्री, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखें तो वो परमानेंट मेंबर है, और अगर से वो ये इनिशिएटिव लेता है तो इसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, और आगे चल के हो सकता है कि हमें टू नेशन थियरी का इंप्लीमेंटेशन देखने को मिले। तो इस न्यूज पे थोड़ा सा फोकस रखना जब ये आने वाला है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इनसे रिलेट करके, इन सब से रिलेट करके पॉसिबिलिटी होगी। ओके, तो इस तरह से न्यूज को थोड़ा सा पढ़ने की हैबिट इंक्रीज करो, अंडरस्टैंड करो। बाकी ये सेशन तो चल ही रहा है आप लोगों को अपडेट करने के लिए, तो कंटिन्यू सेशन को फॉलो भी किया करो, सेशन अगर से अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो। इन 2025 observance of the Kargil Vijay Divas marks how many years since the victory। so देखो 2025 जो कारगिल वॉर था तो कभी हुआ था, आई होप कि आपको पता होगा, 1909 में हुआ था कारगिल वॉर। सो अब यहाँ पे जो हम एवरी ईयर ऑब्जर्व करते हैं, तो कौन से डे को ऑब्जर्व करते हैं, एज वेल एज ये जो इस साल हम ऑब्जर्व करेंगे सिंस विक्ट्री। सो कौन सा एडिशन होगा बेसिकली। सो करेक्ट आंसर इसका हो गया 26। कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व एवरी ईयर 26 जुलाई 2025 मार्क द 26th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री इन कारगिल वॉर 1999। ओके, सो ये सारे इंफॉर्मेशन है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस क्वेश्चंस में बी एक्सपेक्टेड एज अ इंपॉर्टेंट डे पॉइंट ऑफ व्यू इन योर एग्जाम। सो 26 जनवरी ऑब्जर्व एज अ व्हाट, अ कारगिल विजय दिवस। When will the FIDE Chess World Cup 2025 be held in India? So Federation of International Chess, तो देखो कभी होने वाला है 2025 का। तो जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड। एटलीस्ट वेन्यू कहाँ पे है, या फिर अगर से होने के बाद विनर टीम, रनर टीम, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, स्पोर्ट्स पे फोकस किया करो। तो यहाँ पे जो अनाउंस हुआ है कि इट विल बी हेल्ड इन इंडिया, सो ये तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया, अगर इंडिया में हो रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे डेट याद रखो, अक्टूबर 30 टू नवंबर 27 इट विल बी हेल्ड इन इंडिया। ओके, सो इंटरनेशनल चेस वर्ल्ड कप। What is the name of the world most advanced Earth observation satellite to be launched by ISRO NASA on 13 July 2025? So most important question, it may be related to science and technology, आपके लिए हो सकता है। तो just remember the name of the satellite जो दोनों के cooperation से launch किया गया 13 जुलाई को। So correct answer is what, निसार। निसार बेसिकली लॉन्च होगा ये निसार स्पेस। इसरो विल लॉन्च द निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप जॉइंट विद द अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा। ओके, सो रिमेंबर रखो 30 जुलाई को इसको लॉन्च करने वाले हैं। सो इसका नाम एटलीस्ट आपको रिमेंबर रखना है, इसके नाम से रिलेट करके पूछा जा सकता है। एंड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इसरो एंड नासा के कोऑपरेशन से। इनकम टैक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर इन इंडिया? कौन से डे को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट डे से ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो विच डे ऑब्जर्व एज अ इनकम टैक्स डे? सो करेक्ट आंसर इज 24th जुलाई। 24th जुलाई ऑब्जर्व एज अ इनकम टैक्स डे। अब यहाँ पे देखो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। 166th एनिवर्सरी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द इनकम टैक्स 1816 बाय द सर जेम्स विलियन टू मैनेज द पोस्ट 1857। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इंप्लीमेंटेड, हु इंट्रोड्यूस्ड द
इनकम टैक्स इन इंडिया, सो सर जेम्स विल्सन, ये आपको इकोनॉमिक से स्टैटिक क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये भी आप रिमेंबर रखोगे। सो ऐसे ही हर क्वेश्चन के साथ देखो जो भी पॉसिबल हो सकता है इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके में आपको इंक्लूड करके इन्फॉर्म करता हूं, और वो सारे क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड होते हैं और पॉसिबल होते हैं एग्जाम में आने का, और आए भी हुए हर साल आते हैं। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ द 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? सो वर्ल्ड फूड इंडिया एज पर द करंट अफेयर्स, तो थीम यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, नर्सरिंग इन द नेशन एंड राइट टू फूड फॉर द बेटर लाइफ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रोसेसिंग फॉर द प्रॉस्पेरिटी। द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड 2025 फ्रॉम द 25th September एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। Okay, just remember who has appointed as a new mission director of the Atal Innovation Mission AIM? So Dr. Chintan Vaishnav, Amitav Kant, Deepak Bagla, Arvind Pangaria. So related to government appointments, so this question is very important, I can say. Okay, so correct answer is the Deepak Bagla. Bangla. So Deepak Bangla officially took charge as a new mission director of the Atal Innovation Mission 21st July 2025. He succeeded Dr. Chintan Vaishnav, who led the AIM successfully for the 4 year. Okay, so as per the government appointment section related to important personality, so just try to remember. Okay guys, so these are the important questions from the last week, and if these questions are helpful for you to improve your current affairs and static GK understanding, so please like the video, and for the further update related to exams and other strategic video, you can subscribe our channel, and for other any doubt and query, so you can ask in a comment. Okay, and if you want to visit our website, so link is mentioned in a description. Okay, so that's it in this week. See you in next week with latest current affairs. Till the time, just revise and practice. Jai Hind.